میرے ساتھ نکالیے استشفاء کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی پہلی آیت. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان اور اگر تو اپنے خداوند کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی. ایک سیکنڈ سب بولو مجھ پر نازل ہوگی. یہ آگے اور تجھ کو ملے گی شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری. اب یہاں دیکھیں اب خدا کیا کہہ رہا ہے. موسیٰ خدا کا وعدہ لے کر آیا اور بنی اسرائیل قوم سے کہتا ہے کہ اگر آج کے دن تم جاں فشانی کے ساتھ خداوند تمہارا خدا جو تمہیں کہہ رہا ہے اگر تم اس پہ دھیان کرو تو تم کامیاب ہوگے. ہاللیلویا. ایون دیٹ کہ خدا کے کلام میں لکھا تیرے گھر کے چھپائے جانور تک ان کے بچے بھی ہر ایک چیز کے اوپر برکت آئے گی. آج ہر کرسچن ہر مسیح چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں میں برکت پاؤں. خدا کے کلام میں لکھا اگر تو جاں فشانی کے ساتھ کیا کرے چگلیاں کرے یا بانے کرے لیکن اگر تو جاں فشانی کے ساتھ خدا کے کلام پر دھیان کرے اس پر عمل کرے تو میں تجھے دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان سب سے زیادہ میں تجھے برکت دوں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر آپ برکت پانا چاہتے نا تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. آپ سب سے بڑے ڈیوائن ہیلپر اپنے آپ کے اپنے خود. ہاللیلویا. اگر آپ نے برکت پانی ہے تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اوپر خود درس کرو. وہ کیسے کہ آپ خدا کے کلام کے اوپر جاں فشانی کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ جو کلام پتہ ہے آپ کو اگر آپ اس پہ چلو گے تو خداوند آٹومیٹکلی بائبل میں لکھا آسمان زمین کر دیں گے پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ کریں گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایسی بات ہے کہ آسمان اور زمین کر جائیں گے جو مسیح کہتا ہے پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ کریں گی. تو سوچو کہ جس کے کہنے سے یہ آسمان زمین سب کچھ بنا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو جاں فشانی کے ساتھ میرے حکموں پہ چلے تو میں دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں سب سے زیادہ میں بلیس تجھے کروں گا. ہاللیلویا. لیکن تم اندر آتا باہر جاتا مبارک ہوگا. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے آفس سے میری بڑی مخالفت ہوتی ہے میرے بہت کہ گندی کوشش لوگ کر رہے ہیں. اگر خدا تیری اور ہے نا داؤد کہتا ہے اگر خدا میری اور ہے نا تو انسان میرا کیا کر سکتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. لیکن تیری کٹوتی تیری ٹوکری مبارک ہوگی. تیرے چھپائے کے بچے مبارک ہوں گے. کب کہ جب تو خدا کے کلام کے اوپر جاں فشانی کے ساتھ جاں فشانی ہے کیا کہ آپ کو اس کی دھن لگی ہو کہ بس میں نے اس کلام کو اس وچن کو پورا کیسے کرنا ہے میں اس پہ چلوں گا. ہاللیلویا. جیسے دانیل اعلان ہو چکا اگر کوئی اس بت کے علاوہ اگر کوئی اپنے دیوتا کی عبادت کرے گا تو اسے شیروں کی مانگ میں پھینک دیا جائے. تو جو دانیل تھا اس نے پڑھا تھا پرانے احکام کو. آپ کو پتہ ہے آج جیسے ہمارے مسلم بہن بھائی وہ اسکول بھیجے نہ بھیجے مدرسے ضرور بھیج دیں. بہت ضروری وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی دینی تعلیم کو ضرور ہونی چاہیے. میں آج آپ سے یہ کہوں گا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے حالات بہت خراب ہیں ہم بہت مندی میں چل رہے ہیں تو سب سے پہلے خدا کے کلام کو جاں فشانی کے ساتھ کرنا شروع کر دو. آپ دنیا کے اندر اگر کوئی بلیس ہوگا نا وہ آپ ہوگی. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ خدا کا وعدہ ہے.
लेकिन मैं तुझे सब कौमों से ज्यादा ब्लेस करूंगा। तू अंदर आता बाहर जाता मुबारक होगा। तेरी टोकरी, तेरी कटौती, यानी कि तेरा कारोबार, तेरी जॉब, तेरा घर, तेरा सब कुछ ब्लेस होगा। कब? कि जब तू जान पहचाने के साथ, पूरे दिलो जान के साथ, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अकल के साथ, जो हम बहुत चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत चलाते हैं हर एक चीज में। और सबसे ज्यादा अकल हमें पता कब आती है? जब हम खुदा के घर के लिए कुछ करने का सोचते ना, तो हमें अपने घर की जरूरियात भी याद आ जाती है। हाँ, अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस भी याद आ जाती है, अपने घर के इंटरनेट का बिल भी याद आ जाता है। अगर याद भी ना आती तो खुदा के कामों की याद ना। मेरी बात समझ में आ रही? अगर आप, कैसी बात है कि मूसा ने जाके कहा कि खैमा इज्तिमा में जाके ऐलान करो कि अब खैमा इज्तिमा बनाना है तो लोग अपने बीजों के साथ है। उनको वहां को सरमन नहीं सुनाया गया, जस्ट एक अनाउंसमेंट हुई, सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई कि अब जो भी आएगा वो अपने बीजों के साथ आएगा। जो सबसे ज्यादा गरीब होता था ना, वो लकड़ी लेकर आता था रास्ते में से या घर से, जंगल में से काट कर, जब वो खुदा के हुजूरी में आता था तो अपनी लकड़ी लेके आता था, ताकि मस्बा पे तो आग जलती है, लेकिन मस्बा पे 24 आवर 24 घंटे आग जलती है और वो आग जलती रहनी चाहिए, ये खुदा का हुक्म था। तो उसको जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। मेरा सबसे ज्यादा मातड़ होता है ना, तेरा गरीब होता है, तो लकड़ियां ले आता। मेरी बात समझ में आ रही है? और वो लकड़ियों के ऊपर देसी घी डाला जाता था। आज तो देसी खाने को नहीं मिलता। हाँ, वहां लकड़ी जलाने के लिए भी देसी घी होता था। खुदा के यानी कि घर के लिए हमेशा उम्दा चीजें खुदा ने मांगी, वो चाहे आपकी लाइफ में ना। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, जो बेस्ट हो वो खुदा का होना चाहिए। वो चाहे आपका बच्चा है। लोग क्या करते हैं, जरा का सबने डफर होगा ना, मैंने तो बात बना देना। हाँ, जब सबने छोटा दिमाग होता है और खुदा की नेचर है, वो लेता है और वो सबसे ज्यादा बेवकूफों को, निकम्मों को लेता है और उसे अकलमंद बना देता है। हालेलुया। इसमें मैं कुछ जिंदा मिसाल हूँ। हालेलुया। मैं आज आपसे कहूंगा, वो लेता है जरूर, मगर आप क्या करते हो? मेरी बात समझ में आ रही? तो क्या हुआ, जैसे एक अनाउंसमेंट हुई, एक ऐलान हुआ खुदावंद के घर के लिए कि अब खुदा का घर बनेगा, किसमें? टेंटों में। हाँ, तो लिखा जो जिंदा जमीर होंगे ना, वो लोग खुदा ने दिए, उसको नाम लेकर दिए और उन्होंने आकर अपने टैलेंट से जान पहचानी के साथ खुदा के हैकल को बनाया टेंटों में। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही? और वो बहुत मुश्किल काम था। खुदा का अबर हमेशा उधर रहता था और जब वहां से आगे चला जाता था, इसका मतलब ये होता था टेंट उखाड़ने और यहाँ से आगे लेकर जाने। और हमने इस पर सीखा भी और बाइबल में हमें मिलता भी कि वो कई बार तो ऐसा होता था महीनों गुजर जाते थे, कई ऐसा होता था कि हफ्तों में, कई दिनों में खुदा कहता था नहीं, दोबारा मुझको तक दे जाओ ताकि मेरी कौम सुस्त ना हो। जान निशानी से हमेशा एक्टिव रहे, खुदा के हुक्म को माने। हालेलुया। आज अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो आपको जान निशानी के साथ, पूरे दिलो जान के साथ खुदा के हुक्मों पर चलने की जरूरत है, ताकि आप हर एक चीज में बरकत पाए। खुदा के कलाम में मिलता है, यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि तुम बरकत पाओ, हाँ, जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। कसरत क्या होता है? किसी चीज की बढ़ोतरी, किसी चीज में ज्यादा तादाद में होना। मगर आज अगर देखें तो सबसे ज्यादा अगर नीचे को जी रहा है, हाँ, तो वो मसीह है। लिखे तो तू सर होगा, दुम नहीं होगा। तू कौमों को कर देगा, कौमों को, हाँ, तू कौमों को कर देगा, लेगा। और आज सबसे ज्यादा हमारे लोग फंसे हैं, जिनके लिए वादा था, जो वादे के फसल थे, वो हटे हुए और दूसरे लोग उस पर बरकत पा रहे। मेरी बात समझ में आ रही? आपने अगर बरकत पानी है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको ब्लेस करे, तो आपने जान निशानी के साथ खुदा के हुक्मों पे चलना है। हुक्म कौन से? हाँ, वही 10 हुक्म, वही शरीयत। यीशु मसीह के पास एक आदमी आता है, कहता है खुदावंद मुझे बता मैं क्या करूं।
कहता है शरीयत पर अमल, कहता मैं करता है। फिर उसे कहता है अच्छा अगर तू करता है तो अब एक काम कर, ये कर कि अपनी दौलत और अपना माल बेच और गरीबों में बांट। और वो वापिस चला। मेरी बात समझ में आ रही कि आप जरूरी नहीं कि आप शरीयत पे पूरा चलने वाले, मगर आप कंजूस हैं या अपनी दौलत को खुदा से ज्यादा प्यार करने वाले हैं। खुदा हमारा गदूर खुदा है, वो पहला दर्जा मांगता है हर एक हिस्से में। हालेलुया। आपकी लाइफ में, आपके बोने में, आपके दिन के आगाज में, आपके सोते वक्त हर एक चीज में खुदा कहता है पहला दर्जा मेरा होना चाहिए। हालेलुया। फिर जो है ना तू हर चीज में, सब मेरे साथ निकालो बेटा यशवा की किताब कि इन बातों पर कि मैं इसको दोबारा इसी पे लेके आऊंगा। पहले हम यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वें आयत देखेंगे। लिखा है शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे उसी का ध्यान रहे, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है सब पर अख्तियार करके अमल करे, तुझे तब ही तू इकबालमंदी तुझे नसीब हो। कि जब तू ध्यान लगाकर एहतियात से, एहतियात से हम क्या करते हैं, जो सबसे नाजुक चीज होती है हम बड़े एहतियात से, बड़े आराम से उसे रखते और उठाते हैं। हाँ ऐसे ही है ना, यानी कि इसका मतलब ये चीज टूटनी नहीं चाहिए। तो खुदा कह रहे एहतियात से ताकि टूटे ना। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से यानी कि तेरे जुबान से ना हटे, दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो। हालेलुया, हालेलुया। आज यही तो बात है, ध्यान ही नहीं है, ध्यान नहीं हो रहे। आज जो लोग चर्च में बैठे हों, कलाम हो रहा है तो उनका ध्यान किधर हो रहा है। हाँ दिन रात तो दूर की बात। मेरी बात समझ में आ रही? आपने एहतियात से, ख्याल से उस पर ध्यान करना है और उस पर अमल करना है। और लिखा है तू खूब कामयाब होगा। खूब यानी कि जब किसी चीज में कसरत आ जाती ना फिर खूब हो जाता है, यानी ज्यादा, फिर तू बहुत ज्यादा कामयाब होगा। तब जब शरीयत की ये किताब जो खुदा के हुक्म है और ऐसा अमल कर इतिहास से। हाँ जब हम अपने घर की चाबी किसी को देते हैं तो मेरे ख्याल ना रखी घुमाई ना, हाँ घूमनी नहीं चाहिए, एहतियात करिएगा। या अपने बच्चे को, घर के बच्चे को जब हम कुछ लेने भेजते हैं तो अगर 1000 या 500 का नोट हो तो उसे कहते ख्याल ना जाए, घुमाई ना, यानी कि इसकी अहमियत ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? खुदा आपको बता रहा है कि मेरे कलाम की अहमियत बहुत है और अगर उस पे चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ, फिर कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ फायदा आपका। हालेलुया।